Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study about the Ujala and the Street Lighting National Program. Both these schemes have completed successful 6 years, not completely successful but yes, to some extent, successful 6 years have been completed by both these schemes. So what is Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All scheme, and what is the SLNP scheme? We are going to study that. Now, whenever it comes to the schemes, whenever it comes to the programs, policies, welfare acts, etc., you need to remember one thing, that in prelims, UPSC targets these schemes. If you are giving a government exam, make sure that you are thorough with all the schemes, welfare programs launched by the government, because you are going to administer all these schemes and implement them in future. As an IAS, as an IPS, as an IFS officer, you are going to make sure that whatever schemes are passed by the legislators, you need to implement them, execute them, because you are a part of the executive. आप लोग एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनने वाले हो आगे जाकर इस एग्जाम को क्लियर करके, तो इसलिए आपको इन स्कीम्स के बारे में, वेलफेयर प्रोग्राम्स, पॉलिसीज के बारे में पढ़ना काफी जरूरी रहता है. PDF of this lecture will be uploaded on the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Link is given below in the description box. Let's get started. Before we start the lecture, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched new batches for UPSC CSE 2021, 22 and 23 aspirants. And these batches are starting from 4th of August. See, when you are preparing for UPSC, correct guidance is a must. Because if you get the correct guidance, you will not tend to waste much time in searching for resources, syllabus, this and that, etc. जब आपको करेक्ट गाइडेंस मिलता है तो आपका टाइम कम वेस्ट होता है, वरना क्या होता है, समझने में ही टाइम चला जाता है कि कैसे क्या पढ़े, कहाँ से शुरू करें, कौन सा पार्ट कवर करें इस किताब का. ओके, तो करेक्ट गाइडेंस आपको देने के लिए अनअकैडमी के एजुकेटर्स, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, जिनमें से काफी लोगों ने खुद ये एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है, वो आपको सही राह दिखाने के लिए यूपीएससी पर इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं. तो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इन सभी एजुकेटर्स के द्वारा 4 अगस्त से. If you are preparing for prelims and if you are a 2021 aspirant, we have a prelim score booster MCQ batch. आपके पास 2 महीने बचे हैं अब, तो इन 2 महीनों में आपके स्कोर को बूस्ट करने के तरीके, रिवीजन स्ट्रैटेजीज, सब कुछ बताने वाले हैं इन बैचेस में. पूरा सिलेबस रिवाइज कराएंगे और टिप्स और ट्रिक्स बताए जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने प्रीलिम्स के स्कोर को बूस्ट कर सकते हो. अगेन, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of August. Then we have a batch for 1 year for 2022 aspirants, the 1-year batches. Now here, prelims plus mains plus NCRTs plus test series of both prelims and mains will be covered. तो ये पूरा होलिस्टिक बैच आपको 4th अगस्त से स्टार्ट हो रहा है इन इंग्लिश में और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, डोंट वरी एट ऑल. यू हैव अ 2-year batch as well, where India's top educators, including those who have themselves cleared this examination, are going to teach you. Starting from 4th of August, again prelims plus mains plus test series, everything included in these batches. And you can get 10% discount if you use this code ARPITA10. ये कोड यूज करेंगे तो आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट भी मिलेगा आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मेक श्योर दैट यू टेक योर सब्सक्रिप्शन टुडे. द लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो. उजाला स्कीम की बात करते हैं तो फुल फॉर्म्स याद रखने बहुत जरूरी है. टू रिमेंबर द फुल फॉर्म्स, इट इज रियली इंपॉर्टेंट. उजाला मीन्स, यू मीन्स उन्नत, दैट इज प्रोग्रेसिव. J means ज्योति, that is light. Then A means affordable, LED, L मतलब LEDs and A का मतलब इधर all. So उन्नत ज्योति by affordable LEDs. Everybody is going to get progressive lights, right? Progressive lights, why they are known as such? Because lights, when you have proper access to electricity, then it becomes easy for you to even study, cook and live your life. So unnat, that is how you get progress, progress in life. So, and SLNP means Street Lighting National Program. So Ujala and SLNP have completed 6 years of successful implementation. अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि जब हमने इम्प्लीमेंट किया स्कीम को, तो उसको इम्प्लीमेंट किए 6 साल हो गए हैं. ये जो 2 प्रोग्राम्स है ना, ये लाइटिंग सिस्टम्स को, पब्लिक लाइटिंग
सिस्टम को एक्सेसिबिलिटी, इसकी पब्लिक लाइटिंग सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी को पूरी कंट्री में बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। दोनों ही स्कीम्स जो हैं इसको इंप्लीमेंट करने वाला है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। व्हाटएवर आई एम अंडरलाइनिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। जो मैं रेड कलर से अंडरलाइन करूंगी वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाटएवर आई एम अंडरलाइनिंग विद रेड कलर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। व्हाटएवर आई विल बी अंडरलाइनिंग विद ब्लू कलर विल बी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। Okay, point clear है यहाँ पर। So here both schemes have been implemented by Energy Efficiency Service Limited. Now this particular EESL, it's a joint venture of public sector undertakings under the Ministry of Power. So main ministry which comes under this scheme is Ministry of Power, because power से जो कि ज्योति लाइटिंग की का प्रोग्राम है ना, तो यहाँ पर Ministry of Power तो आएगा ही आएगा। Now, these programs have also bagged, they have received global awards like South Asia Procurement Innovation Award 2017, Global Solid State Lighting Award of Excellence for Transformational Contribution to the LED sector. यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इफ अ क्वेश्चन कम्स ओवर द उजाला एंड SLNP इम्प्लीमेंटेशन, राइट, देन यू हैव टू इन द इंट्रोडक्शन मेंशन दैट हु हैज लॉन्च्ड द स्कीम, ठीक है, किसके अंडर ये स्कीम आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। एंड इफ दे आस्क यू फॉर द सक्सेस ऑफ द स्कीम देन यू हैव टू मेंशन दीज ग्लोबल अवार्ड्स एज वेल। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द उजाला स्कीम, ये एक जीरो सब्सिडी स्कीम है, ठीक है। Now the main question is what is a zero subsidy scheme? They can ask you this question in interview also. तो यहाँ पर लिख लो, please write it down. Zero subsidy scheme means subsidy free. Okay, it means deployment or use of the scheme without government mandated support. Okay, इसमें ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ मैंडेटरी कंपल्सरीली सपोर्ट दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जीरो सब्सिडी स्कीम है जिसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा। लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2015 में लॉन्च हुआ था एंड इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट and it is also known as LED based domestic efficient lighting program. ये point बहुत important है and this is not just important for prelims but also important for your mains. Okay, तो इस scheme को because LED is involved in the scheme for better affordability and accessibility of light, so it is also known as DELP and it aims to, what is the aim of the scheme? Aims to promote efficient usage of energy for all by making the use of LED. ओके, ताकि अफोर्डेबिलिटी के साथ और एफिशिएंटली एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके, कंज्यूम किया जा सके, सेव किया जा सके, इस तरीके की ये स्कीम है। हर डोमेस्टिक हाउस होल्ड में जिसके पास मीटर्ड कनेक्शन है, ठीक है, आपके घर में मीटर्ड कनेक्शन होता है ना, तो अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, चाहे वो BSES का हो, राइट, तो हर ऐसा मीटर्ड कनेक्शन वाला डोमेस्टिक हाउस होल्ड एलिजिबल होगा इस स्कीम के अंडर टू गेट द LED बल्ब्स अंडर द स्कीम। ओके, तो इससे क्या होगा, जो ब्लैक में इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में लेकर आते हैं, खंबे से तार निकाल लेते हैं, तो ऐसी चीजें, ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे इंसिडेंट स्टॉप हो जाएंगे। प्रॉपर मीटर्ड कनेक्शन लो तो आप इस स्कीम में कवर हो जाओगे। एंड अंडर उजाला द EESL हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 36.69 करोड़ LED बल्ब्स अक्रॉस इंडिया, जिसकी वजह से कम 47.65 बिलियन किलोवाट पर ईयर की एनर्जी की बचत हुई है। ओके, तो आपको कहा जाता है ना कि LED बल्ब यूज क्या करो घर में, इसीलिए क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट होती है, एनर्जी वेस्ट नहीं करती है, जिससे जो आपका एवरेज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना 15% से कम भी आएगा, ठीक है। LED का यूज करके क्या होता है, लाइट एमिटिंग डियोड होता है LED। दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन LED ऑल्सो बिकॉज आई गेस इन 2016 और 15 अ क्वेश्चन केम ऑन LED, ठीक है, तो प्लीज स्टडी अबाउट LED एज वेल। So what is LED? LED की full form है light emitting diodes. It's used as a standard source of light and this light emitting diode, it's an electric component which emits light. जैसे ही electric current इस diode के through flow करता है तो ये light emit करता है. So it's a light source based on the semiconductors. When the current passes through the LED, the electrons recombine with holes emitting light in the process. Okay, point clear हो गया? तो जो LED है, it allows the flow of current in the forward direction. Okay, and it blocks the flow in the reverse direction. That you have to remember. इस point को आप याद रखिएगा. अब LED का ना symbol पढ़ लेते हैं. Let us understand the symbol of LED. Now this is the demonstration of the LED symbol. Okay, ये LED symbol का demonstration है. The symbol is similar to that of a PN junction diode.
एक पीएन जंक्शन डायोड भी होता है जो लाइट एमिट करने के लिए यूज होता है, उसी का सेम सिंबल एलईडी में यूज होता है। बेसिकली डिफरेंस क्या है एलईडी सिंबल और पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल में? दैट द डिफरेंस इज दैट दीज टू सिंबल्स इज दैट द टू एरोज इंडिकेट दैट द डायोड इज एमिटिंग द लाइट। ये जो दो एरोज है ना यहाँ पर, this indicates that light is being emitted. Okay, now let us study about the SLNP. ये तो हमने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ लिया, अब स्ट्रीट इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं। SLNP was also launched in 2015. ये भी एक गवर्नमेंट स्कीम है जिससे एनर्जी एफिशिएंट लाइट इंडिया में प्रोवाइड की जाएगी। इस प्रोग्राम के अंदर EESL ने रिप्लेस किया है कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी लाइट से, अगेन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, टू सेव एनर्जी। तो एलईडी ने अपने खुद के कॉस्ट, EESL ने अपने खुद के कॉस्ट पर कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स को रिमूव करके उनकी जगह एलईडी का यूज किया है, ठीक है। और इसका जिम्मेदारी दी गई है म्युनिसिपैलिटीज को, बट म्युनिसिपैलिटीज लगाने की जिम्मेदारी इनकी होगी, फंडिंग की जिम्मेदारी इनकी नहीं, EESL फंडिंग लेकर आ रहा है। SLNP has planned to bring the investment of rupees 80,000 crores by 2024 to cover the rural India streets as well. Rural India में क्या होता है, गाँव में रात को अंधेरा हो जाता है, वहां पर इतनी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, शहरों में तो है, तो इसलिए स्ट्रीट लाइट्स अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी गाँव में भी लेकर आने के लिए SLNP ने इन्वेस्टमेंट लाने की प्रॉमिस किया है, प्लान किया है कि हम 8,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे 2024 तक। ओके, so this was all about the Ujala Unnat Jyoti by affordable LEDs for all and SLNP scheme. I hope you enjoyed this lecture. उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है। On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone. Have a beautiful day ahead.